Children, this is our computer book, IT Planet by Bits and Bytes, Computer Series 3. Children, in our previous video, we were doing Chapter 2, that is Computer Hardware. So children, we had completed half of the chapter and today we are going to do the remaining part. So children, before moving further into the chapter, let us revise what we did in the previous video. So children, this is chapter 2. Here you can see chapter 2 and the topic is computer hardware. So children, till now we have studied that all the physical part of the computer that is attached to the computer are collectively called as hardware. तो बच्चों आप जैसा कि जानते हैं, आप यहाँ पिक्चर भी देख रहे हैं, there are different parts shown here. All these parts can be seen and फेल्ट. अगर हम इसे छू करके देखें तो हम इसे देख भी सकते हैं और छू करके हम इसे महसूस भी करते हैं. सो चिल्ड्रन, हियर यू कैन सी द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, स्पीकर. ऑल दीज पार्ट्स आर called as the hardware. So other than these parts children, there are some more parts which are present inside the CPU also. तो जो internal parts हैं, those parts also we can see and touch, so they are also known as hardware. So children, let us study about the hardware in detail. So children, in this chapter basically we are going to read about hardware components. ये हैं hardware components. So children, what are these hardware components? As I told you before also children, that whatever we have studied till now in the previous class or in this class before this chapter children, all these cover the hardware components. So children, as I told you कि in previous chapter also we had studied about different parts of the computer, and these different parts of the computer are divided into two topics basically children. A few parts are used for giving instructions to the computer. Children, as we know, the computer cannot perform even a single task until or unless you give instructions to the computer, you switch on the computer, or that means कि it totally depends upon our instructions. So children, अगर हमें कंप्यूटर को instructions देना है तो we need some devices, and these devices which are used to give instructions to the computer are known as input devices. So children, in previous class also we have studied that a computer cannot perform even a single task without the instructions given by us. It does the work only when it is started by the man or only when it is given instructions by the man. So अगर हमें कोई instructions कंप्यूटर में देना है या feed करना है तो we need some devices. Using these devices we give the instruction or enter data into the computer. Now children, what are these devices? These devices are, the first type of component is, first component is input devices, and the different types of input devices are children, keyboard. Here is the picture of keyboard which you can see here. This keyboard is the kind of board which has small buttons present on this. जैसा कि आप जानते हो कि कीबोर्ड जो होता है एक तरह का बोर्ड होता है जिसमें छोटे छोटे बटन्स होते हैं, and these buttons are called keys. अब if you want to give any instruction in the form of words or numbers, you use keyboard, and these instructions can be given by pressing the letters or the numbers which are present on the keyboard. So children, by pressing these letters or numbers or these keys, you can give instructions to the computer in the form of numbers or letter. आप keyboard एक तरह का input device होता है, we all know, क्योंकि वो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करता है. There are small buttons present on the keyboard children. These small buttons are called keys. इन buttons को हम क्या कहते हैं? इनको हम keys बोलते हैं. Now children, these keys are pressed to enter data into the computer. अगर हमें कंप्यूटर को किसी भी तरह का डेटा देना है तो ये जो छोटे छोटे बटन इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं इनको प्रेस करके हम डेटा एंट्री करते हैं, मतलब डेटा प्रोवाइड करते हैं. These keys are pressed to enter data into the computer. Now children, the keyboard of a desktop computer typically has 101 to 105 keys. So children,
normally the type of computer keyboard which we use have keys starting from 101 to 105. तो एक कॉमन टाइप का जो कीबोर्ड हम लोग यूज़ करते हैं उसमें कितने नंबर्स ऑफ कीज़ होते हैं चिल्ड्रन? 101 से 105 तक वेरी करते हैं नंबर इसमें हो सकते हैं. सो दिस इज कीबोर्ड चिल्ड्रन. दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ द input device. Then we had studied about mouse also. Mouse is another input device children, which is used to select or draw pictures. It is used to point something on the screen. So children, as you can see, the picture of a mouse is given on your screen. This mouse is just like a mouse found in our house. So children, this mouse has two buttons. इस mouse में कितने buttons होते हैं? Two buttons होते हैं. One is towards the left hand, so it is known as left button, and the other one is towards right hand, so it is known as right hand button or right mouse button या right button. ठीक है, तो हम इसे left button या right button के नाम से जानते हैं. And in between these two buttons children, we have small wheel like structure. This wheel like structure is known as scroll button. इसे हम scroll button कहते हैं. So this is all about a mouse children. You can easily keep your palm on the mouse and hold it with your hand. So children, it is very easy and convenient to hold the mouse using our palm. So children, next input device is scanner. As you know children, scanner is an input device which is used to enter images, text, drawing etc. into the computer. अगर आपको स्कैनर से अगर आपको कोई भी डेटा एंट्री करनी है या इनपुट करना है इनटू द कंप्यूटर चिल्ड्रन इन द फॉर्म ऑफ इमेज के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में या ड्राइंग के फॉर्म में, तो यू कैन यूज़ स्कैनर. देन चिल्ड्रन, नेक्स्ट टाइप ऑफ input device is joystick. As you can see here children, next one is joystick. Joystick is another input device that can be attached with the computer to play games. तो जो joystick होता है children, ये भी एक तरह का input device होता है जिसके थ्रू हम गेम्स खेल सकते हैं. जैसा कि आप जानते हो, जब भी हम गेम्स खेलते हैं हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं. सो चिल्ड्रन, दीज इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन by using the joystick. So here joysticks is another input device. Now children, microphone. As you know children, you can give instructions in the form of voice also to the computer. So the microphone is an input device that is used to record voice on a computer. Using the microphone you can record voice in the computer, and children, that voice can be used by the computer for performing any work. Then children, you can record any type of voice including your own voice and save it on a computer. So children, microphone is another type of input device. Now children, digital camera. As we know children, digital camera, also called as digicam, is an input device which is used to capture and store photographs electronically in the computer. So this here, if you want to give the instruction in the form of picture or recording, फोटोग्राफ के फॉर्म में या फिर रिकॉर्डिंग के फॉर्म में, तो आप यहाँ पे वीडियो के फॉर्म में, तो आप यहाँ पे डिजिकैम से रिकॉर्डिंग कर सकते हो, पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हो, और एंड यू कैन प्रोवाइड इट टू द कंप्यूटर for performing work. Now children, touch screen. Touch screen is another input device using the screen of a computer. Children, laptop और tablet. टच स्क्रीन किस में होता है? लैपटॉप में टैबलेट में होता है या फिर मोबाइल फ़ोन्स में होता है. तो these are also used to give the instruction. By touching the screen you can give instructions to the computer. Then the children, object on the screen is pointed using a finger. टच स्क्रीन में हम अपने फिंगर से जो भी चीज़ें हमको स्क्रीन में दिखाई देती है उसे ऑपरेट करते हैं. तो हियर द फिंगर एक्ट्स एज द पॉइंटिंग डिवाइस. जैसे कि हम कंप्यूटर के स्क्रीन में एक पॉइंटिंग डिवाइस देखते हैं जो कि माउस हैंडल करता है, लेकिन हम अपने हाथ फिंगर से पॉइंट को एज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ कर सकते हैं और स्क्रीन को छू करके हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं. सो चिल्ड्रन,
First type of hardware component is input. Now second type of hardware component about which we have studied in our chapter is children आउटपुट डिवाइस. अब जो आपका आउटपुट डिवाइस होता है, द नेम इटसेल्फ सेज इट गिव्स आउटपुट. ये हमें फाइनल रिजल्ट देता है. अगर हम कोई काम कंप्यूटर से करवा रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें किसके थ्रू मिलता है चिल्ड्रन? वी गेट द रिजल्ट यूजिंग द output devices. What are these output devices children? These are monitor, speaker और children it can also be printer. अगर आप मॉनिटर कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वो हमें मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखाई देता है. वेदर you are writing a text or you are watching picture, seeing picture or watching movie or watching cartoons और videos देख रहे हो children, so all these are displayed on the monitor. And children, as you know, video is used to display something. It is also known as monitor is also known as VDU, visual display unit. As we know children, monitor is used to display something. It is also known as VDU. VDU का full form होता है V for visual, D for display and U का मतलब होता है यूनिट. वो यूनिट जहाँ हम किसी भी चीज़ को विजुअली डिस्प्ले कर सकते हैं. नाउ चिल्ड्रन, द मॉनिटर ऑल्सो लुक लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन. आपके सामने मॉनिटर दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप देख सकते हो डेल लिखा हुआ है. दिस स्क्रीन इज़ जस्ट लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन. तो जो मॉनिटर होता है वो टेलीविज़न स्क्रीन की तरह होता है और वो जब भी हम उसे देखते हैं तो वो हमें टेलीविज़न की याद दिलाता है. दैट मीन्स इट रिजेंबल्स द टेलीविज़न. चिल्ड्रन, वॉट एवर यू टाइप with the help of keyboard it displayed on the monitor. Just now I told you children, अगर आप कुछ लिख रहे होते हो तो वो भी मॉनिटर में आपको दिखाई देता है. अगर आप कुछ ड्रॉ कर रहे होते that will also be displayed on the monitor. If you are playing a game that will also be displayed on the monitor. If you are watching a music that will also be displayed on the monitor. So the text or the videos which you see on the monitor are called soft copy. So children, in our previous chapter we have in our previous class we have also discussed about two terms, that is hard copy and soft copy. अब hard copy का मतलब होता है बच्चों कि अगर कोई भी रिटन चीज़ जो होता है, अगर आपको पेपर पे प्रिंट कराते हो, आप उसे कंप्यूटर स्क्रीन में देखने से के अलावा आप उसे पेपर पे प्रिंट करते हो तो वो हार्ड कॉपी बन जाती है. और उसी को अगर आप स्क्रीन पे देखते हो और मॉनिटर पे वो आपके रहता है या कंप्यूटर में रहता है तो इट इज़ सॉफ्ट कॉपी. वाई इट इज़ नोन एज सॉफ्ट कॉपी चिल्ड्रन? हम उसे सॉफ्ट कॉपी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कॉपी को हम कभी भी रिव्यू कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं और वापस यूज़ कर सकते हैं. दैट मीन्स चिल्ड्रन यू कैन मेक any kind of change anytime. That is why it is known as soft copy. Now children, because the information is displayed for a temporary period of time, children, that is why it is called soft copy. क्योंकि आप जब चाहो उसे डिलीट कर सकते हो, जब चाहो आप उसे सेव कर सकते हो, जब चाहो आप उसे यूज़ कर सकते हो, फिर स्क्रीन से हटा सकते हो. तो आप काफ़ी कुछ उसमें कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, उसको उसमें ऐड कर सकते हो, उसमें से डिलीट कर सकते हो. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सॉफ्ट कॉपी. इसलिए हम इसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. लेकिन चिल्ड्रन, उसी चीज़ को अगर आप पेपर पे प्रिंट कर देते हो तो इट बिकम्स हार्ड कॉपी. सो आई होप चिल्ड्रन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ hard copy and soft copy. Now children, our next topic in the output device is children printer. As I told you, किसी भी चीज़ को if you want to get it printed on the paper, for example you have typed a question paper in your computer and you want it to get it printed from the printer. So children, the printed question paper is nothing but it is a hard copy. ठीक है? So children, the text or the graphics we get on the paper are called hard copy because the information is displayed on paper permanently. दैट मीन्स कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये फॉर एवर हो गया. अगर हम कोई भी चीज़ पेपर पे प्रिंट करते हैं चिल्ड्रन तो क्या हम उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं? अगर हम चाहें तो भी उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं. इसीलिए चिल्ड्रन उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं. सो चिल्ड्रन,
सो चिल्ड्रन, जब तक कि आपका इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में होता है हम उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, क्योंकि हम उसमें किसी भी तरह का चेंज कर सकते हैं। वो टेम्परेरी डाटा होता है, ठीक है, वो टेम्परेरी डाटा होता है। हम कभी भी उसको डिलीट कर सकते हैं, हम उसको उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आप उसे प्रिंट कर लोगे पेपर पे तो इट बिकम्स परमानेंट, वो हमेशा के लिए हो जाता है, अनटिल और अनलेस यू डिस्ट्रॉय इट। आप उसे डिस्ट्रॉय ना करो, आप उसे फाड़ो ना, तो वो परमानेंट हो जाता है और उसमें आप किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते हो। दैट इज़ वाई चिल्ड्रन द इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रिंटेड ऑन द पेपर इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी एंड द इंफॉर्मेशन विच इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। सो हार्ड कॉपी इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्रिंट आउट। हम हार्ड कॉपी को प्रिंट आउट भी कहते हैं। अक्सर हम जाते हैं, कहते हैं हम मुझे इस पेज का प्रिंट आउट निकालना है, या फिर हमारी टीचर कहती है इफ़ यू डोंट हैव बुक यू कैन गेट इट प्रिंटेड, तो हम उसका जा कर के बुक का पूरी प्रिंट आउट निकालते हैं। तो किसी भी चीज़ को कंप्यूटर से प्रिंट करके हम पेपर पे निकालते हैं तो हम उसे प्रिंट आउट कहते हैं, एंड दैट प्रिंट आउट इज़ नोन एज हार्ड कॉपी। सो चिल्ड्रन, इज़ देयर एनी डाउट इन हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी? आई होप यू डोंट हैव. So children, now third type of output device is स्पीकर. एज यू नो चिल्ड्रन, स्पीकर से हम गाना सुनते हैं, यानी हमें कुछ मिलता है, समथिंग इज बीइंग गिवन आउट. तो स्पीकर इज वन ऑफ द आउटपुट डिवाइस, and because we get something or in the form of sound, we hear something in the form of sound from the computer, so it is output. Now children, you can listen to songs, speeches and other different sounds through speakers. The speakers come in different shapes and sizes. जो स्पीकर होता है बच्चों, आपने बहुत तरह के स्पीकर्स देखे होंगे. कोई राउंड होता है, कोई ओवल होता है, कोई सिलेंड्रिकल होता है, तो कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बॉक्स की तरह होता है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट शेप एज वेल एज डिफरेंट साइजेस. तो चिल्ड्रन, स्पीकर इज़ अनदर आउटपुट डिवाइस. सो अभी तक हमने इनपुट आउट डिवाइस पढ़ा एंड आउटपुट डिवाइस पढ़ा, एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट डिफरेंट examples of output and input devices. So children, all these examples about which we have discussed just now are the different hardware components. ये सारे hardware component हैं जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, एक बार सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन हमको हार्डवेयर कंपोनेंट इस साल ये वर्ड पढ़ने को मिला है और ये सारी चीज़ें हार्डवेयर कंपोनेंट में आती हैं. नाउ चिल्ड्रन, अनदर इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट इज चिल्ड्रन इज़ स्टोरेज डिवाइस. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, स्टोरेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संभाल करके रखना ताकि हम उसको दोबारा फ्यूचर में यूज़ कर सकें. तो चिल्ड्रन, यहाँ पे जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, दीज कंपोनेंट्स आर कैन बी टच्ड एंड फेल्ट ऑल्सो. ये भी 3 डायमेंशनल पिक्चर होते हैं, इनको भी हम देख सकते हैं और छू के महसूस कर सकते हैं. और इनको यूज़ करके हम जो भी काम कंप्यूटर पे करते हैं, जो भी हमको इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट मिलता है, उसे हम स्टोर करके रख सकते हैं. तो जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं. तो सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन is called storage device. So children, let us see what are the different types of storage device. So here children, storage device में सबसे पहला जो storage device होता है जिसको हम primary storage device कहते हैं, primary या main storage device कहते हैं, जिसका मतलब है कि अगर हम कंप्यूटर में कोई भी काम करके सेव करते हैं तो वो इस स्टोरेज डिवाइस में जा कर के सेव हो जाता है. सो चिल्ड्रन, दिस स्टोरेज डिवाइस इज जस्ट लाइक अ बॉक्स. ये एक बॉक्स की तरह होता है. Here you can see the picture of storage device, main storage device, that means which is present inside the CPU. तो जो भी आप कंप्यूटर पे काम करते हो आप उसको सेव करते हो ताकि आप उसको फ्यूचर में यूज़ कर सको, आपको वही काम दोबारा ना करना पड़े. तो चिल्ड्रन, ये जो स्टोरेज डिवाइस है इसको हम एज अ सेफ़ यूज़ करते हैं. सेफ़ का मतलब होता है वो लॉकर जिसमें हम अपने वैल्यूएबल्स रखते हैं. तो जैसे कि एक लॉकर होता है जिसमें हम वैल्यूएबल्स रखते हैं, उसी तरह एक सेफ़ कंप्यूटर के CPU में होता है. तो जो जो चीज़ें हम उस कंप्यूटर में सेव करते जाते हैं वो जाके इस CPU, इस हार्ड डिस्क में या हार्ड ड्राइव भी जिसको हम कहते हैं, उसमें जाके वो कलेक्ट हो जाता है. तो चिल्ड्रन, हार्ड डिस्क इज़ one of the storage device which is used to store the large amount of data
and with a very fast speed. तो बच्चों बहुत ही फास्ट स्पीड से, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हम बहुत सारे डेटा को इस स्टोरेज डिवाइस में सेव करके रख सकते हैं. सो चिल्ड्रन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ हार्ड ड्राइव. हम इसको हार्ड डिस्क भी कहते हैं और हार्ड ड्राइव भी कहते हैं. नाउ चिल्ड्रन, दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस. सेकेंड टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज CD-ROM डिस्क. अब बच्चों, आप जैसा कि आप जानते हो, जो CD-ROM डिस्क होता है, इट इज़ राउंड इन शेप. दैट इज़ वाई वी कैन से इट इज़ सर्कुलर इन शेप. राउंड शेप को हम सर्कुलर भी कह सकते हैं. इट इज़ सर्कुलर इन शेप. CD-ROM स्टैंड्स फॉर compact disk read only memory. CD-ROM is known as compact disk read only memory. C for compact, आप देख सकते हो यहाँ पे, C for compact, D for disk, R for read, O for only, M for memory. So this is the full form of CD-ROM, or this is abbreviation of CD-ROM. So stands for compact disk read only memory. Now it is also used to save data. ये डेटा को भी सेव करता है. It is circular in shape and it can store up to 700 MB of data. So इसकी जो कैपेसिटी होती है 700 MB of data तक स्टोर करने की होती है. So children, this is another type of storage device. Now children, अब here we have some updates. चिल्ड्रन, अपडेट का मतलब होता है कि समथिंग विच यू नो. सो डू यू नो चिल्ड्रन, DISK डिस्क, आपने सुना होगा. DISK डिस्क, डिस्क का मतलब होता है, इज यूज टू डिस्क्राइब हार्ड डिस्क एंड अदर मैग्नेटिक मीडिया, एंड डिस्क इज the term used to describe CDs, DVDs and other optical media. So जो DISK डिस्क होता है चिल्ड्रन, DISK डिस्क जो होता है is the term used to describe हार्ड डिस्क. जो CPU के अंदर हार्ड डिस्क होता है, जिसको अभी मैंने बताया, कोई एक शेल्फ की तरह होता है या एक लॉकर की तरह होता है, जिसको यूज़ करके हम अपने उसमें सारी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, जिनकी ज़रूरत हमें फ्यूचर में भी पड़ सकती है, और हम उसको एज इट इज़ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या फिर हम उसमें चेंजेस करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और हमारे पास वो हमेशा पड़ा रहता है. तो बार बार उसी चीज़ को करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. नाउ चिल्ड्रन, तो जितने CD डिस्क इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब हार्ड डिस्क एंड अदर मैग्नेटिक मीडिया. तो कंप्यूटर में बहुत सारे जो मैग्नेटिक मीडिया या हार्ड डिस्क होते हैं, उसको डिस्क्राइब करके हम DISK डिस्क का यूज़ करते हैं. तो चिल्ड्रन, जो डिस्क है यहाँ पे DISK डिस्क का मतलब होता है हार्डवेयर. इसका मतलब होता है हार्ड डिस्क जो कि हमारे CPU में प्रेजेंट होती है, या दूसरे मैग्नेटिक मीडियाज़, उन सबको हम कहते हैं DISK डिस्क. उसके लिए हम DISK डिस्क वाला डिस्क यूज़ करते हैं. देन चिल्ड्रन, DISC इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब CDs. C और D में जो डिस्क है वो है DISC, और DVD में जो डिस्क है वो भी DISC है. सो चिल्ड्रन, एंड अदर ऑप्टिकल मीडिया, और इसके अलावा बाकी ऑप्टिकल मीडिया के लिए हम DICS वाला डिस्क यूज़ कर सकते हैं. तो सी हियर देयर इज डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्पेलिंग्स एंड बोथ द लेटर्स वर्ड्स आर यूज्ड फॉर different things. So children, this is all with CDs. Now DVD is also like a CD only, and DVD stands for digital video disc. DIGITL, digital video disc. It is similar to a CD in shape. It also looks like a CD. Children, if you have seen CD shown displayed on the previous page, it was also circular in shape. This is also silver in color, and the only difference between both are, children, the capacity to store the information. So जो CD होता है वो उसकी कैपेसिटी कंपैरेटिवली DVD से कम होती है, और बहुत कम होती है. अगर आपका जो we can say that. So children,
जो वी कैन स्टोर अप टू 4.7 GB ऑफ डेटा एज कंपेयर टू ओनली 700 MB ऑफ डेटा कैपेसिटी ऑफ अ CD-ROM। तो CD-ROM की कैपेसिटी 700 MB की होती है, वेर एज DVD की कैपेसिटी 4.7 GB की होती है। सो चिल्ड्रन, देर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द डेटाज। सो CD-ROM और जो DVD होता है, बोथ आर सेम, देयर यूज इज़ ऑल्सो सेम, बट द ओनली डिफरेंस इज द स्टोरेज कैपेसिटी। CD कंपैरेटिवली कम डेटा को स्टोर कर सकता है और जो DVD होता है उससे कई गुना ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट वन इज पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज अनदर important storage device, children. A pen drive is yet another storage device which is used to store data and information. So children, about pen drive also we have studied in our previous class that it is the most commonly used device to store the data. तो ज़्यादातर लोग चिल्ड्रन पेन ड्राइव को यूज़ करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए। ये पोर्टेबल होता है और उसके बाद इट इज़ वेरी इजी टू ट्रांसफ़र डेटा यूजिंग द पेन ड्राइव एंड इट इज़ सेफ ऑल्सो। सो चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ अस यूज़ द pen drive for storing the data or for transfer of the data, because you can transfer data using the pen drive with very ease यानी आसानी से। it is the most commonly used data storage device। ये सबसे ज़्यादा commonly used data storage device है। Now children, we have our last topic of this chapter, or this is the last type of hardware component which comes under other hardware component. So children, यहाँ पे other hardware component other than input, output and storage devices are some other hardware components attached to the computer, and these hardware components are system unit. So children, as you can see, system unit का मतलब होता है वो यूनिट जो पूरे सिस्टम को चलाती है। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब वो ग्रुप जिसमें जो भी हमने मेन कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा है, जैसे कि वी हैव स्टडीड दैट देयर आर 4 मेन पार्ट्स of a computer. For example, keyboard, monitor, CPU, mouse. These are the 4 important parts of a computer which join together, which are attached together, and they perform any task together. So children, इन सबको एक साथ हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। इन सबको हम एक साथ कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ चिल्ड्रन, द सिस्टम यूनिट इज़ अ प्लास्टिक और मेटल केस। ये या तो ये प्लास्टिक हो सकता है या फिर मेटल का कोई केस हो सकता है। दैट स्टैंड्स नियर द मॉनिटर, जो हमेशा मॉनिटर के आपने देखा होगा कि जब भी हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर की तरफ, तो हमारे पास एक केस होता है जो एक बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो हमेशा हमारे मॉनिटर के बगल में रहता है। सम सिस्टम यूनिट्स आर प्लेस्ड अंडर द मॉनिटर, और कुछ सिस्टम यूनिट आजकल जो है वो मॉनिटर के अंदर भी रहते हैं। तो अंडर यानी कि मतलब नीचे भी रहते हैं। सबसे पहले नीचे हम CPU को रखते हैं, फिर उसके ऊपर हम मॉनिटर को रखते हैं। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, एंड अ सिस्टम यूनिट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द कंप्यूटर केस। इस सिस्टम यूनिट को हम कंप्यूटर केस भी कहते हैं। सो चिल्ड्रन, एज यू नो कि आर ब्रेन कंट्रोल्स अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारा जो ब्रेन होता है कंट्रोल्स ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। उसी तरह से दिस CPU कंट्रोल्स ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जितने भी दूसरे पार्ट्स कंप्यूटर के होते हैं, ये CPU उन्हें कंट्रोल करता है। एंड CPU का मतलब है चिल्ड्रन, यहाँ पे CPU का मतलब CPU को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। नाउ चिल्ड्रन, अनदर पॉइंट इज इट द CPU और द सिस्टम यूनिट? ये एक CPU है या सिस्टम यूनिट है? सो चिल्ड्रन, इट इज़ अ सिस्टम यूनिट, और यू कैन से अ कंप्यूटर केस। आप इसको सिस्टम यूनिट भी कह सकते हो, इसको कंप्यूटर केस भी कह सकते हो। CPU इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। जो CPU होता है ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का, विच रिसाइड्स इन द सिस्टम यूनिट, जो कि सिस्टम यूनिट में रिसाइड करता है या प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी रहता है। सो एवरी कंप्यूटर हैज़ अ
सिस्टम यूनिट, हर कंप्यूटर के CPU में सिस्टम यूनिट होता ही है और इसके बिना हम कंप्यूटर से कोई काम नहीं कर सकते. सो चिल्ड्रन, दिस वाज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर components. Now children, we were reading about system unit. So features of system unit, we have already studied about the feature of computers और बाकी बहुत सारी चीज़ों के features हम पढ़ते हैं to know it well. So children, here we are going to read about the features of a computer. Every computer has a system unit and कंप्यूटर केस. तो जितने भी हमारे पास कंप्यूटर होते हैं उसमें सिस्टम यूनिट होता है और इसमें एक केस होता है. आप इधर देख सकते हो चिल्ड्रन, ये जो बॉक्स है इसमें केस है और सिस्टम यूनिट भी है. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. टाइम ऑलमोस्ट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. सो चिल्ड्रन, गो थ्रू द चैप्टर. वी विल मीट वंस अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद आवर नेक्स्ट topic. So children, till then read the part of the chapter which we have done and learn the different difficult spellings and also meaning of the difficult words. So children, which will make you understand it better and it will be easier for you to learn the concept. So children, thank you and have a nice day ahead.